Good morning everyone. Welcome back to Shivaji Group of Institutions online classes. This is your first period of English language. So take out your English language book, Growing with Grammar. Open up page number 16 and today we will discuss about chapter 16, tenses. Tense means time. Tense means time. There are three kinds of tenses and that is present tense, past tense and future tense. Means what we are doing right now, that is present. What we did in one day before, that is past, and what we will do after today, that means future. Okay, present tense means our today's work, what we are doing today, past yesterday, and future tomorrow. That is clear. Present tense, past tense and future tense. Which work we are doing right now, that is present. Which work we will do after tomorrow, that means tomorrow, after today, that means tomorrow. Which work we will do after today, that means which work we will do tomorrow, that is future. And what we done yesterday, what work we did in our yesterday, in our past time, in our back time, that is past. So tenses are divided in three parts: past, present and future tense, and all past, present and future tense also divided in four parts. Okay, present tense is divided also in four parts. First part is present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Okay, but in chapter 16 we will discuss about present indefinite tense. Alright, present indefinite tense. Present indefinite tense refers to those actions which are related to our regular life, as like Ram eats his food, Sita dances well. So which is our routine life? Which is our routine life, that is there in past indefinite tense, and which are universal truths, that the earth always rotates around the sun. So that is a universal truth. Sun rises in the east, that is also a universal truth. So all universal
we done in which we are doing in our regular life, or which we done in our past life also, and which we will do in our future life. That will always comes under indefinite tense, present, past and future indefinite tense. Clear? All the universal truths are also comes under indefinite tenses. Now I'm going to tell you how to form positive sentence. We always form 4 types of sentences: positive, negative, interrogative, negative sentence in any kind of tense. Okay, with any kind of tense. So here we will learn about to form a positive sentence under present indefinite tense. Okay, positive sentence. A table is given in your book on page number 60, as you can see. I is used for first person, you is used for second person, and he, she, it used for third person. Okay? That is given in your book. So first of all, we will write it here. I is used for first person, you is used for second person, and he, she, it. With it, these are under third person. I is used for first person, you is used for second person, and he, she, it stands for third person. So with I and you, we use verb first form, and with he, she, it, and any name, we always use verb with s and es. You know what verb action words are called? Verb which action done by us, as like laugh, eat, talk, walk, watch. These all are actions. Actions which regular routines done by human being. These are called actions, and all action words are called verb. So with I, you, we always use verb first form, that means talk, watch, eat, laugh, and with he, she, it, and any name, Riya, Sia, Rima, Ramesh, Nimesh, any name, we always use verb first form with s and es. Okay, eats, goes. Alright, that is clear. Alright, that is clear. With I and you, we always use verb first form, and with he, she, it means third person, he, she, it, and any name, any animal name, any place name, any name, we always use verb first form with s and es. Okay, that is clear to you all, I hope. So let's do exercise here. Take your book and choose the correct word and fill in the blanks. You know that with I, you, and with plurals, we always use verb first form, and with he, she, it, and any singular name or any single thing, we always use verb with s and es. Okay. So first is they. They is singular or plural? They is plural, so we will use play. Shally. Shally is singular name, and with singular we use s and es. So praise. Sally prays to
got. We are plurals. There are two candidates, right? So we are plural. So with we will use single verb first form only. We will not add s and es with that. So celebrate is here. We celebrate Diwali every year. Mr. Bose and his son. Mr. Bose and his son. There are two candidates. Mr. Bose and his son. Two male are there. So if there is two candidates, we use only verb first form. So write go here. Arjun. Arjun is a singular name. If there is a singular name, we will use verb with s and es. Arjun writes with a ball pen. Charu. Charu is also a singular name. Charu her belongings in the cupboard. Keeps. Boys and girls. This is a plural. There is a lot of boys and lot of girls. Boys and girls study together. Brandon waters the plants daily. With I we always use verb first form only. We will not add s and es. That is clear to you all. With I, you and any. Plural. We always use verb, simply verb first form. We will not add s and es there. So if there is I, we will use verb first form. Invite. Samuel. Samuel is a name of a single person. Samuel is a boy. So Samuel drives the car very fast. Okay. I am repeating my words with I, you and plural names. We use simply verb first form, and with he, she, it and a single name. Single name, Riya, Sia, Seema, Rita, any single name. We always verb with s and es. Okay, that is clear to you all. And now do exercise B and C by yourself. This is very easy. You are able to do this. Okay. Always remember, with he, she, it and any single name, we always use verb plus s and es. With I, you and plurals, I, you, they and any plurals, we use simple verb first form. We will not add s and es there. Okay. So do exercise, and that is positive statements, positive sentence of present indefinite tense. Alright. We will meet again with another exercise in our next class. Till then, complete your work and read the chapter again. Do exercise. Bye bye. Thank you. Good morning, students. This is your second period, and this period is of Hindi. And today this is your Hindi language turn. So take out your Hindi language book and open up the page number 36. Page number 36, चैप्टर 8. बच्चों, आज मैं आपको पाठ 8 विशेषण जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, आज मैं आपको फिर से चैप्टर 8 पढ़ा रही हूँ. विशेषण. विशेषण क्या है जानते हैं. विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द. विशेषण अर्थात किसी की विशेषता बताने. परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. ठीक है. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. जैसे विशेषता क्या बताएंगे. विशेषता क्या होती है. विशेषता अर्थात किसी का रंग, रूप, आकार, आकृति, ये क्या होती है, किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान की विशेषता होती है. जैसे उदाहरण के लिए यह बोर्ड है तो बोर्ड काला है. ठीक है. श्यामपट बोलते हैं. श्यामपट काला है. तो श्यामपट कैसा है, काला है. यानी श्यामपट वो वस्तु हो गई और इसकी विशेषता क्या है, काला.
तो इसके रंग की बात की, श्यामपट्ट बड़ा है, अर्थात ये जो बोर्ड है श्यामपट्ट है ये बड़ा है। तो अब की बार हम इसके आकार की बात कर रहे हैं, श्यामपट्ट बड़ा है। ठीक है, तो विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषता बताते हैं। विशेषताएं मैंने आपको बता दी, किसी का रंग रूप आकृतियाँ क्या होती है, उसकी विशेषताएं होती हैं। सुंदर, छोटा, नाटा, मोटा, पतला, नीला, काला यानी रंग। ठीक है, मूर्ख, बुद्धिमान, ये सब क्या है, ये गुण है किसी के, दोष हैं, तो वो भी क्या होते हैं, विशेषण ही होते हैं। तो विशेषण की परिभाषा इसी प्रकार है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कोयल काली है, कोयल काली है, राम बुद्धिमान है, मोहन लंबा है, तितली रंग बिरंगी है। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये 4 वाक्य दिए हैं, इन चारों वाक्यों में आइए देखते हैं विशेषण क्या है। कोयल काली है, तो कोयल का रंग कैसा है, काली है, तो रंग अर्थात ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। राम बुद्धिमान है, राम का गुण है ये कि राम बुद्धिमान है, अर्थात बुद्धिमान शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। मोहन लंबा है, मोहन कैसा है, लंबा है, तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। तितली रंग बिरंगी है, तितली कैसी है, रंग बिरंगी है। इसके अलावा बच्चों किसी मात्रा या नाप के लिए भी जो जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे भी विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, 1 किलो शक्कर दे दीजिए। ठीक है, तो ये 1 किलो 2 किलो ये जो मात्रा बता रहे हैं, नाप बता रहे हैं, तौल बता रहे हैं, ये शब्द भी क्या होते हैं, ये भी विशेषण होते हैं कि कितनी चाहिए, 1 किलो 2 मीटर या, तो इन शब्दों को भी विशेषण कहते हैं। अर्थात अगर हम किसी वाक्य से कैसे या कितने प्रश्न पूछे और जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है, विशेषण कहलाता है। ठीक है, यानी कोयल कैसी है, काली है, राम कैसा है, बुद्धिमान है, मोहन कैसा है, लंबा है, तितली कैसी है, रंग बिरंगी है। 2 मीटर कपड़ा दे दो, कितना कपड़ा दे दो, 2 मीटर, तो कपड़े की विशेषता क्या है, कितना चाहिए, 2 मीटर, तो ये सब क्या हो गया, विशेषण हो गए। इसके बाद हम समझते हैं विशेष्ट को। विशेषण जो विशेषता बताता है और एक होता है विशेष। विशेष किसे कहते हैं, विशेष और विशेषण का आपस में क्या संबंध है, आइए जानते हैं। विशेषण, विशेष और विशेषण मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आपको याद भी होगा। ठीक है, विशेष क्या है और विशेषण क्या है। उदाहरण जैसे अभी मैंने आपको विशेषण तो बता दिया कि जो शब्द विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और जिन शब्दों की विशेषता जो शब्द विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, और वे जिसकी विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेष कहलाते हैं। अर्थात विशेषण विशेषता बताता है और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता बताई जाए वे विशेष, और जो शब्द विशेषण बताएं विशेषता बताएं वे विशेषण। जैसे पहला उदाहरण था कोयल काली है। ठीक है, तो कोयल कैसी है, काली है, तो काली शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। कैसी है, काली, ये क्या है,
उसकी विशेषता बता रहा है। और विशेष से क्या हो गया, कोयल। ठीक है, तो कोयल शब्द क्या हो गया, विशेष है, क्योंकि कोयल की विशेषता बताई जा रही है। ऐसे ही हम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कैसी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो हवा, हवा कैसी है, ठंडी ठंडी, तो ठंडी ठंडी शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया, और हवा क्या हो गया, विशेष से हो गया। राम बुद्धिमान है, राम बुद्धिमान है, तो राम क्या, बुद्धिमान कैसा है, राम बुद्धिमान, तो बुद्धिमान कौन है, राम, तो राम क्या हो गया, विशेषण, यानी बुद्धिमान हो गया विशेषण और राम हो गया विशेष है। इसी तरह से बच्चों जैसे आपका दिया गया नटखट बालिका, तो नटखट शब्द क्या हो गया, विशेषण, और बालिका संज्ञा है। कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान क्या होते हैं, विशेष से होते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो बालिका हो गया आपका विशेष। चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी में चालाक शब्द हो गया विशेषण और विशेष हो गया लोमड़ी। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था विशेषण शब्दों का निर्माण कुछ शब्दांश को जोड़कर कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर हम विशेषण का विशेषण बना लेते हैं। जैसे शरीर, शरीर से विशेषण बनता है शारीरिक, शरीर से क्या बनता है, शारीरिक। वर्ष से वार्षिक, परिवार से पारिवारिक, आदर से आदरणीय, भारत से भारतीय, इतिहास से ऐतिहासिक। तो ये सारे संज्ञा शब्द हैं, इसमें हम कुछ शब्दांश जोड़कर क्या बनाते हैं, विशेषण बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो आपकी टेबल दी गई है, जो तालिका दी गई है, इसे आप पढ़ेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने सीखा कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। शब्दों के अंत में शब्दांशों को जोड़कर हम विशेषण बना लेते हैं। और विशेषण शब्द किसी व्यक्ति के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, आकृति आदि के बारे में बताता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य थे जो पेज नंबर 38 में दिए गए हैं। पहला था सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए, और ये मैंने आपको करवाए भी थे। देखते जैसे पहला दिया गया है विशेषण, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द है। दूसरा है विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। तीसरा विकल्प है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो आप इसमें तीसरे विकल्प में सही का निशान लगा देंगे। खा वाक्य दिया गया है विशेष, विशेष क्या है, वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, पहला विकल्प है। दूसरा है जो क्रिया से पहले किस प्रयोग किए जाते हैं, और तीसरा है वह विशेषण का ही दूसरा नाम है। अभी बताया विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात पहला विकल्प सही है। ग वाक्य दिया गया है विशेषण तथा विशेष में अंतर है, दोनों समानार्थक अथवा पर्याय हैं। दूसरा है विशेषण विशेषता बताते हैं, जबकि विशेष वे शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। बच्चों आपका यही विकल्प सही है, तो आप इसमें सही का निशान लगा देंगे। फिर है मिलान कीजिए। बच्चों मिलान कीजिए में आपको जो मिलान करके दिया गया था, जो उन्होंने उदाहरण के तौर पर दिया था, वो गलत मिलान था। मैंने आपको सही मिलान यहाँ पर करवा दिया था। ठीक है, प्राचीन का मैंने मिलान कराया था सभ्यता से, और इन्होंने उपजाऊ को सियार से मिला दिया था, जो कि पूर्णतया गलत है। उपजाऊ मैदान से मिलेगा और चतुर को आप सियार से मिलाएंगे। ठीक है, चौथा अभ्यास कार्य था, नीचे लिखे शब्दों में शब्दांश जोड़कर विशेषण बनाइए। जैसे नगर, तो नगर में शब्दांश जोड़ेंगे ई, तो बन जाएगा नगरीय। ठीक है, अंत, अंत से विशेषण बनेगा अंतिम। श्रद्धा, श्रद्धेय। चमक, चमकीला। राष्ट्र, राष्ट्रीय। ठीक है, तो मैंने आपको कराए थे, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। अब आपको पेज नंबर 39 में रचनात्मक कार्य दिया गया था, जो मैंने आपको कराया था। इसके अलावा अगर आप इनके लिए कोई दूसरे विशेषण लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से उन्हें चेक करा लेंगे कि आपने सही लिखा है अथवा गलत। सो स्टूडेंट्स, आज आपका होमवर्क है, आपको पार्ट 8 पुनः पढ़ना है और इसकी परिभाषा याद करनी है, और समस्त अभ्यास कार्य भी करने हैं और याद करने हैं। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास।
Till then, complete your all work and also learn. Thank you. Bye bye. Take care.